गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. In our previous discussions, we have discussed about work and power. And now, in this lecture, we will be concentrating in energy. In our day-to-day life, as we come across this particular term so many times. Okay. And I told you when discussing about work done, something about energy also. Okay. You must be remembering. See, when we were saying that some work is performed, how this work was performed. You just take example कि you have one stone, you are raising the level of that particular stone, a work is performed. Okay, how this work is performed, you just think of, you have consumed muscular energy from your body. As I think you will agree, some energy is consumed only due to that reason we are able to perform work. Now, when you have raised the level of the body, what you have done? You have stored energy in that particular body. And you must be knowing that energy is called as potential energy. We will be discussing about potential energy in detail. Energy stored. Whatever, wherever we are performing work, okay, whatever we are doing, okay, we are consuming some form of energy to perform work. And the object on which the work is performed, that object stores the energy. Okay. If you sitting and while watching this video, okay, if you want to prove this particular thing experimentally, okay, just एक बड़ा छोटा सा एक्टिविटी बताता हूँ मैं. Okay, what you will be doing, okay, you start slapping on your cheeks. Okay, fine, start slapping easily, आराम से, ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आराम से आप स्लैप करो. Okay, slap. Done? Okay. Slap yourself. आपने slap किया. What you have done? Now you will be saying, okay, when you have moved your hand, okay, to tap on your cheek, you have performed a work. You will be saying that. Agree. I'll agree. No problem. A work is performed. Fine. ठीक है. How this? Now I am asking how this particular work is performed. Then you will say, this work is performed by consuming muscular energy. Muscular energy consumed. Okay? To slap yourself, you are consuming muscular energy to perform work. Now, wherever you have slapped, just notice, वहां पे क्या क्या हो रहा है. As you have slapped, what you will notice, ओके, सबसे पहले तो टैप का एक साउंड आएगा, स्लैप का साउंड एनर्जी. इट्स ओके. आवाज आता है ना स्लैपिंग का, साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ओवर देयर. इट्स ओके. सेकंड थिंग, टेम्परेचर इंक्रीजेस एट दैट पर्टिकुलर पोर्शन जहां पे आपने स्लैप किया.
हीट एनर्जी। ओके, अगर चीक पे किया, ठीक है ना, अपने गाल पे किया, देन क्या होगा, इलास्टिसिटी के कारण कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होगा ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Then when you will slap, okay, on your cheek, गाल के ऊपर जब स्लैप करोगे तो हेड के अंदर मूवमेंट क्रिएट होती है ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ दैट स्लैप, मतलब काइनेटिक एनर्जी। You know, to slap you have performed work, बिल्कुल सही। And to perform this particular work done, you have consumed the muscular energy, and that work is performed, the work which you have performed, उस गाल के पोर्शन के ऊपर वर्क परफॉर्म किया, वहां पे एनर्जी किस किस फॉर्म में स्टोर हो रही है। देखो, साउंड बना वहां पे, साउंड एनर्जी, हीट बना वहां पे, हीट एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके बाद गाल हमारा कंप्रेस हुआ क्योंकि मटेरियल के पास इलास्टिसिटी है, मार के देखो अपने आप को थप्पड़ चढ़ा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर दैट हेड में मूवमेंट हुई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। नाउ इफ यू नो, और भी यहां पे कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी विच वी आर अनेबल टू सी, देख नहीं पा रहे हैं लेकिन है, ठीक। तो अगर सपोज देखो, यहां पे आपने जो वर्क परफॉर्म किया वो 100 जूल वर्क परफॉर्म किया, ओके, वर्क परफॉर्म इन द सिचुएशन इज 100 जूल, स्लैपिंग वाले सिचुएशन में। अब इस 100 जूल के लिंक में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, मस्कुलर एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 100 जूल। As much energy will be consumed, as much work, okay, will be performed. जो भी बॉडी अपना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो कितना वर्क परफॉर्म करेगा, as much energy is consumed. Now, as much work is performed, the same amount of energy will be stored. मतलब ये एनर्जी जो स्टोर हुई है, अगर इन सब का ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल एनर्जीज जितनी भी हैं सबका सम करें, ओके, तो दिस विल बी 100 जूल, ओके, फाइन। तो एनर्जी बेसिकली इज एन एंटिटी विच एक्ट एज द बैकअप फॉर द वर्क डन, ठीक है ना, which basically performs the work, or whenever work is performed on any system, that system stores the energy. अब यहीं पे आप एग्जांपल में देखो, कंसंट्रेट करो, वर्क के पहले जो एनर्जी है दैट इज मस्कुलर एनर्जी, आफ्टर वर्क वी हैव दीज एनर्जीज। तो व्हेन डिफाइनिंग वर्क आई टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर थिंग कि वर्क basically is transformation of energy. Wherever the transformation of energy is taking place, okay, there a work is done, a work is performed. I told you this thing when defining work. Work done is a quantity, work done is a physical quantity which is related to transformation of energy, transformation of energy from one form to another form. Okay, you take an example of your two-wheeler Activa, सभी चलाते हैं ना, okay, see what you are doing, basically you are consuming fuel, okay, fuel, petrol जल रहा है ना, burn हो रहा है। Now when petrol is burning, energy is consumed. Which energy? Chemical energy. ओके, लेट प्रोसेस में आपने 200 जूल एनर्जी कंज्यूम किया। नाउ दैट 200 जूल ऑफ केमिकल एनर्जी कंजम्पशन will be leading to
a performance of work will be leading to a work done. How much? As much energy is consumed, that is 200 joule. As the fuel is burning, work is performed to move the piston. Okay, work is performed against the friction. Okay, and that work performed क्या होता है? कौन सा एनर्जी स्टोर करता है? Stores kinetic energy. Energy stored. Which form? Kinetic energy. Okay, how much kinetic energy will be stored? Same thing, 200 units. Okay, so work done basically helps the energy to be transformed from one form to another form. It's okay. Before work we have energy, after work we have energy. Now you want to define energy. How will you define? चलो let's go ahead to define energy. अब देखो, एक पर्सन के पास सपोज उसने खाना खाया, ओके, टेकन मील अप टू द फुल कैपेसिटी. मील हैज गिवन ओके एनर्जी दिया. लेट उनको एनर्जी मिला मील से 77 जूल. 77 जूल ऑफ एनर्जी the person has got from meal. 77 joule of energy the person has got from meal. फूड से उसको इतना एनर्जी मिला. अब ये एनर्जी उस पर्सन से कितना वर्क डन करवाएगा? सिंपली बता दो जल्दी से. अभी तक जितना बताया उससे भी पता चल जाएगा. ओके, हाउ मच वर्क दिस पर्सन विल बी एबल टू परफॉर्म. हमें सबको पता है कि जितना एनर्जी इसके पास स्टोर्ड है उतना वर्क द पर्सन विल बी एबल टू परफॉर्म. Mean this person will be able to perform 77 joule of work done. Why this person will be able to perform only 77 joule of work done? Because the energy stored with the person is 77 joule. As he will be consuming energy, will be able to perform work. यस, जैसे ही उसका एनर्जी स्टॉक खत्म हुआ, वर्क परफॉर्म करना बंद कर देगा. यस और नो? तो एनर्जी बेसिकली क्या है? अगर आप यहां से एनर्जी डिफाइन करने लगो, इसके पास कितना एनर्जी स्टोर था? 77. मतलब इसका कैपेसिटी अभी इस सिचुएशन में 77 था. 77 जूल्स ऑफ एनर्जी दिस पर्सन हुआ. तो इसके पास कितना एनर्जी, ये कितना वर्क परफॉर्म कर पा रहा है? 77 जूल. तो डेफिनेशन मिल रहा है कि नहीं एनर्जी का? यहां से एनर्जी बेसिकली इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म वर्क. इट्स ओके. the body will be able to perform as much work, as much energy storage the body will be having. If the body will be having more energy stored, body will be able to perform more work. If it will be having lesser energy stored, it will be performing lesser work. So you must have understood the definition of energy now. This is the simplest way to define energy. It's okay. Energy is capacity of a body to perform work. It's okay. Storage form में भी आप define कर सकते हैं. Okay? ठीक है बेटा. तो different forms of energy we have. You all are aware of, है ना? तो अभी अगर मैं कह रहा हूं डिफरेंट फॉर्म, तो आपके ब्रेन के अंदर फटाफट से 2-3 आइटम्स ने क्लिक किया होगा. लाइक सर, एक तो काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक हीट एनर्जी होता है, एंड सो ऑन, है ना? so many types of energy you must have counted in your brain. You all know those forms of energy. Okay? And how those energies behave when they are associated with a body. You all know that. Okay? Fine. Now if I say
कि काइनेटिक एनर्जी इज वन ऑफ द फॉर्म, है ना, तो मेरे से पहले आप ही बता दोगे ओके कि भाई काइनेटिक एनर्जी तभी होता है सर, फाइन, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, सम वर्क इज परफॉर्म्ड एंड वी हैव मूव्ड द बॉडी इज मूविंग, तो वर्क परफॉर्म के कारण द बॉडी हैज स्टोर्ड some kind of energy which is which is helping that body to behave in the form of motion. Okay, so kinetic energy is a kind of behavior which is demonstrated by a body by having or by storing a motion in air. It's okay. चलो पहले ब्रीफ के अंदर सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी छोटा छोटा करके बता देते हैं आपको, है ना। काइनेटिक एनर्जी, हाउ विल यू डिफाइन काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी possessed by a body due to its motion. Very good. Now energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. Okay, suppose a body, same body, fine, mass m, body of mass m, moving with 40 kilometer per hour, and another body is moving with 60 kilometer per hour. So which amongst the two, mean body m in situation 1, okay, in situation 1 is moving with 40 kilometer per hour. In some other situation the same body is moving with 60 kilometer per hour. So in this situation this is having more kinetic energy. Okay, this is kinetic energy more. Okay, and this body will possess kinetic energy less. Okay, क्योंकि मोशन फैक्टर इसका कम है, इसका कंपैरेटिवली ज्यादा है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज योर पोटेंशियल एनर्जी। चलो फटाफट से 2-3 सिचुएशंस बता दो जहां पे बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है। आप फटाफट से ये कहोगे कि सर एक स्टोन लिया, ओके, और स्टोन को ग्राउंड फ्लोर से उठा के ओके अपर फ्लोर पर ले गए। वी हैव टेकन दैट पर्टिकुलर बॉडी फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू अपर फ्लोर। ओके, नाउ द बॉडी इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। यस, हमने उसका लेवल रेज कर दिया बाय परफॉर्मिंग वर्क, है ना। यस, द बॉडी हैज पोटेंशियल एनर्जी। फाइन, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हमने क्या किया? वी हैव परफॉर्म्ड अ वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो वहां पे बॉडी के पास कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइन, पता चला। नाउ अगर सेकंड केस कहूं, सेकंड सिचुएशन, फिर आप कहोगे कि अनदर टाइप ऑफ एनर्जी आई विल बी सेइंग कि आप सर एक स्प्रिंग लो, कंप्रेस दैट स्प्रिंग, कंप्रेस दैट स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है, ओके, यहां प्लेस किया और इसको कंप्रेस कर दिया आपने। ठीक, इसका लेंथ डाउनवर्ड कंप्रेस कर दिया। नाउ इलास्टिसिटी के कारण इसके पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक, कैसे पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी आया? ध्यान से देखो, आपने ये जो बॉडी है जिसका लेवल रेज किया था, ये एक बॉल थी, यहां आप इसको रूफ के ऊपर ले गए, फ्लोर, अपर फ्लोर पे ले गए थे। आपने कहा कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फील्ड में तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे पता चला कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? इसके नीचे से ये फ्लोर निकाल दो और चेक वेदर दिस बॉडी इज स्टेबल हियर और नॉट। जब इसके नीचे से फ्लोर निकल जाएगा तो ये नीचे गिरने लगेगा कि नहीं? इट मींस द बॉडी इज नॉट स्टेबल इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल है। सेकंड फ्लोर पे लेके जाओगे और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी, और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। स्प्रिंग का एग्जांपल लो, स्प्रिंग में आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, यहां पे आप इसको ले आए कंप्रेस करके, अब आप इसको यहां से रिलैक्स करो, तो ये क्या इसी कॉन्फ़िगरेशन में रहता है? स्टेबल है इस कॉन्फ़िगरेशन में? आंसर इज नो। एकदम से अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता है, तो इसका मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में ये अनस्टेबल है। यस,
तो सिंपल वे में इफ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन. ओके, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन. यहां पोजीशन के कारण अनस्टेबिलिटी है, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो पोजीशन वाला चेंज है, ठीक है. और यहां पे कॉन्फ़िगरेशनल चेंज के कारण पोटेंशियल एनर्जी है. यस और नो? ठीक है. तो दीज आर द सिचुएशंस व्हेन अ बॉडी पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम एक कॉमनली इन सभी चीजों को, इसको पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, यहां पे भी अनस्टेबिलिटी है, यहां पे भी अनस्टेबिलिटी है. जितना ज्यादा अनस्टेबिलिटी बॉडी के पास होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो बड़े सिंपल वे में आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी of a body basically is the degree of instability associated with the body. It's okay? ठीक है. More the instability, more the potential energy. Lesser, मैंने कहा ना डिग्री, okay? Degree of instability. Lesser instability, lesser potential energy. More instability, more potential energy. It's okay? Now, जिस तरह का फील्ड सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व होगा उस तरह का पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा. समझ में आया? लाइक टू चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे को अनस्टेबल कर रहे हैं, वहां पे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, टू पॉजिटिव चार्जेस रिपेलिंग ईच अदर. यस, तो मेकिंग अनस्टेबल ईच अदर. तो यहां पे जो अनस्टेबिलिटी है वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, ठीक है. टू मैग्नेट्स, बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, अट्रैक्ट ईच अदर. तो अट्रैक्ट करके एक दूसरे को अनस्टेबल कर रहे हैं. मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया था? एक बॉडी को उठाया था और रूफ के ऊपर ले गए थे. अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी. तो ग्रेविटेशनल फील्ड में सारा गेम हो रहा है. तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का रेज हुआ, ठीक है ना, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इट्स ओके. जहां इलास्टिसिटी होगा वहां इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा. जहां न्यूक्लियर फील्ड होगा वहां न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी. इन whatever will be the nature of the field involved in the situation, that type of that field will be producing basically the instability. Okay, और उसी तरह का पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है. हमें गुस्सा आता है ना, साइकोलॉजी इज प्लेइंग द रोल. साइकोलॉजिकल पोटेंशियल एनर्जी. Degree of instability associated with the body is called as potential energy. It's okay? Now, heat energy, आपको सबको पता है, sense of temperature देती है कि नहीं? Which gives us a sensation of temperature. Heat energy. Heat energy also, पहला बात है temperature. और अगर हम गैशियस मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जाएं, रैंडमनेस, फाइन, हीट एनर्जी, फाइन. आफ्टर दैट वी हैव इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब होता है? You have a cell, बैटरी सेल, सर्किट में लगाते हैं तो दैट प्रोड्यूसेस करंट इन द सर्किट, दैट हेल्प द चार्जेस टू मूव, है ना. तो उसके पास कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फ्यूल, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डला, गाड़ी में डीजल डला. ओके, तो बेसिकली क्या है वहां पे? दैट इज अ केमिकल. बॉन्ड्स टूट रहे हैं, एनर्जी बन रही है. ओके, केमिकल एनर्जी. Okay, energy possessed by human muscle, muscular energy. Energy involved
in the situation of when the transmutation of nuclei takes place. Nuclei breaks or nuclei fuse together. Nuclear fusion, nuclear fission. Okay? Energy involved over there is nuclear energy. Okay? Or so many forms of energies are there. Magnetic energy we have, electromagnetic energy we have, okay, and so on. Fine? So just go through the content, whatever is given there in book. Fine. And if you find any confusion, this lecture, I'll not say this is physics. This is general knowledge. Already you were knowing, nothing new I told you. In the next lecture, I'll be going into the details of these energies. Okay, and go through the content. If you find any kind of confusion, let me know about it. Okay, thank you. Have a nice day.